Okay, now. So today we are going to see about algorithms. Okay, what are algorithms? It is a sequential steps to form any type of calculation. Okay, sequential steps to perform the calculation. Okay, so we can define the algorithm as sequential step to perform the calculation. Okay, so now we will see one example. Step 1, algorithm to add two numbers. To add two numbers. Okay, so फर्स्ट स्टेप विल बी, फटाफट मुझे आपको चैट बॉक्स में आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा. Yes. So first step of ours will be start. Step 2 will be, yes, take two numbers. Step 3 will be, step 3 क्या होगा? Yes, correct. Add two numbers. Step 4 will be, step 4 क्या होगा? Yes, Purvesh, we can say like that. Add two numbers and, sorry, and store in C. Add two numbers means we can take A and B. ठीक है, add two numbers A, B and store in C. Step 4 हमारा क्या होगा? Output. Correct. Arya, very good. We've done output, or else you can say that print C. Okay, why? Because we have stored our addition in C. Okay, so that because of that we will be writing over here print C. अभी print C मतलब क्या होगा? It's just an example. Print C मतलब C print नहीं होगा. Print क्या होगा? जो भी आपने numbers ऐड किया है वो print होगा. Okay, and last step हमारा क्या होगा? Step 5 क्या होगा? पहले I will complete this and I will explain the thing. Yes, Arya, correct. End. So this is our small algorithm. ये हमारा छोटा सा algorithm है to add two numbers. Okay. So now start हो गया मतलब you are starting the process. Take two numbers मतलब हो गया we are taking 10 and 10. For example, A is take two numbers A and B लिया right? तो A is equal to हम लोग 10 लेंगे, ठीक है, और B is equal to हम लोग 10 लेंगे, ठीक है. नाउ थर्ड स्टेप हमारा क्या है? Add two numbers and store in C. मतलब C is equal to A plus B. समझ में आ रहा है? That means C is equal to 10 plus 10. ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है. जो भी आंसर मिलेगा वो हम लोग इसमें स्टोर करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट या कोई भी लैंग्वेज नया रीड करते हो, सो कोई भी चीज़ हमें किसी अल्फ़ाबेट वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है. नाउ इन दिस केस सी है, ये ए है, ये बी है, ये सब क्या है? वेरिएबल्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है. सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. अब फोर्थ स्टेप, दिस वन, आउटपुट. फोर्थ स्टेप हम लोग को क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? फटाफट बोलो चैट बॉक्स में.
C इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा 20, करेक्ट। तो C इज इक्वल टू 20। तो ये दो नंबर्स को हमें वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये दो नंबर्स को दैट इज 10 10, ठीक है, ये 10 और 10 को ऐड करने के लिए हम लोगों को हाउ मेनी स्टेप्स वी आर गेटिंग टेकिंग, हाउ मेनी स्टेप्स वी आर टेकिंग, can anybody tell how many steps I have written? 5 steps. To add two numbers we are taking 5 steps. First step will be start, second step will be taking two numbers a and b, a और b आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हो. Step 3 will be uh, add two numbers a and b and store in c, ठीक है. Step 4 will be output print c and 5 होगा end. Now in algorithm to write start or to write end is very compulsory. इसके अलावा आप लोग नहीं algorithm complete कर सकते हो. Okay, and the definition can be called as sequential steps to perform the calculations. Okay, any sequential step to perform a calculation is known as algorithm. ठीक है, समझ में आया. Now ये add हो गया, यहाँ पे आप subtract, multiplication, division, to take a even and odd numbers, ये सब ले सकते हो. ओके, समझ में आया. Fine. So this was a very simple example. Now I would like to ask अगर आपने कोई एल्गोरिदम सोचा है क्या? Yes, you can type in a chat box. I will write the steps in a PC. Yes, Dhruvi, you can proceed. What algorithm you are going on the car? Yes, we can take an algorithm for driving a car. Okay, driving a car. So step 1 क्या होगा for driving a car? This first step will be you will be entering the car. Start करोगे, enter the car. Okay, this will be your start. Okay, step 2 will be enter a key. Without key or not able to join the drive the car. ठीक है. Step 3 will be start a car. Step 4 will be step 4 क्या होगा? गियर. यस, गियर अप होगा. गिव द गियर, यू हैव टू गियर अप करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप 5 विल बी before gear up you will be one more step you can add, you can tie a seat belt. Gear up होगा, then you will be handle the steering. Okay, step 6 will be step 6 क्या होगा? Drive the car. It may be possible that ये सब steps में हम लोग एक दो step भूल गए होंगे, but these are the common steps which are used to drive a car. Okay, and last step will be step 7 क्या होगा? Can anybody tell? End. Correct. End क्यों लिखा है? Because as we are writing a algorithm, so it is very necessary to write a end statement. Okay, समझ में आया. तो जो भी प्रोसीजर आप करते हो, ओके, जो भी चीजें आप करते हो, इवन इन डे टू डे लाइफ, हर एक चीज वी आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर मैनर.
राइट। कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो या फिर कोई भी आप चीज़ें बना रहे हो, कोई भी रेसिपी बना रहे हो, तो यू आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स दैट, उसमें एक भी स्टेप आप मिस नहीं करते। ना ड्राइविंग अ कार में अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप कार ड्राइव कर सकते हो? नो, राइट, यू आर नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, राइट। सो एवरीथिंग नीड अ पर्टिकुलर सिक्वेंशियल स्टेप्स। फिर वो आपका होमवर्क हो, फिर आपका डेली रूटीन हो, या फिर हम लोग एडिंग हो, सब्ट्रैक्टिंग हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, एवरीथिंग इज नीडिंग सम अ टाइप ऑफ स्टेप्स। हर एक स्टेप्स चाहिए रहता है। सो दैट स्टेप्स कैन बी रिलेटेड टू द एल्गोरिदम। ठीक है, कोई भी चीज़ें करने के लिए, नाउ फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर, व्हाट इंजीनियर इज डूइंग, इंजीनियर क्या करता है, पहले ही इज मेकिंग अ डिजाइन। डायरेक्टली वो डायरेक्टली ओके, ही इज नॉट डायरेक्टली बिल्डिंग अ कार और एनीथिंग, राइट। कार बनाता है डायरेक्टली, जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर है वो डायरेक्टली कार बनाना स्टार्ट करता है क्या? यस और नो? You can give me the answer. Yes, no? No. What he is doing, वो ऑन पेपर पहले सब कुछ लिख लेता है। ठीक है, उसको कैसे डिज़ाइन चाहिए, वॉट थिंग शुड बी यूज, वो पूरा उसके एक पेपर पे लिख लेगा। तो वो लिखने का जो प्रोसेस है, दैट वी कैन रिलेट विद द एल्गोरिदम। ओके, नाउ वाइल प्रिपेयरिंग अ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग प्रिपेयर होता है, ओके, बिल्डिंग जब प्रिपेयर होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली तो बिल्डिंग वो प्रिपेयर नहीं करते। व्हाट ही व्हाट द सिविल इंजीनियर विल डू, सिविल इंजीनियर सबसे पहले तो क्या करेगा, बिल्डिंग का डिजाइन बनाएगा ऑन पेपर, राइट। ऑन पेपर बिल्डिंग का डिजाइन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो, व्हाट थिंग्स आर नीडेड फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग, सच एज सैंड हो गया, फिर वो जो भी प्लाईवुड्स है, जो भी उसको चाहिए रॉ मटेरियल, ही विल गैदर इट। ओके, all the ingredients, yes, ingredients we can relate with the food section। सीमेंट, वो जो भी उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए वो पहले वो गैदर कर लेगा, डायरेक्टली वो बिल्डिंग नहीं बनाएगा। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बनाता है, एल्गोरिदम। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बनाएगा, एल्गोरिदम्स बनाएगा। वो स्टेप्स लिखेगा कि उसको उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। ओके, उसको पेमेंट, बिल पेमेंट चाहिए उसको। फॉर एग्जांपल हम लोग डॉक्टर का सॉफ्टवेयर लेते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग एन सॉफ्टवेयर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या क्या अवेलेबल होता है, आईसीयू सेक्शन अवेलेबल होता है, कितने रूम्स अवेलेबल होते हैं, बेड्स अवेलेबल रहते हैं, फिर इंजेक्शन्स अवेलेबल रहते हैं, मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं। ये सब उसको पहले सोचना पड़ेगा कि व्हाट थिंग्स शुड बी एडेड इन अ हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यू हैव यू हैव सीन मैनी टाइम्स, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो एंड यू वांट टू मीट समवन, आप रिसेप्शन में से पूछते हो कि वेयर इज दिस पेशेंट। इमीडिएटली बाय सीइंग इन अ कंप्यूटर द रिसेप्शनिस्ट आपको बता देती है यस दिस पेशेंट इज इन दिस रूम। करेक्ट, एम आई करेक्ट? होता है ऐसे, होता है ना। आप तुरंत, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये पेशेंट ये रूम में एडमिट है। सो दिस ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। उनको एक सॉफ्टवेयर मिला है जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें बनाने से पहले जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो पहले सोचेगा कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके स्लॉट्स अलग अलग बनाएगा, तो उसको लेके वो एल्गोरिदम बनाएगा। वंस ही हैव कंप्लीटेड विथ एल्गोरिदम, स्टेप्स हो गए उसके, उसके बाद ही विल स्टार्ट मेकिंग अ फ्लो चार्ट। ठीक है, वो क्या बनाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही विल स्टार्ट अ कोडिंग, उसके बाद वो कोडिंग स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तुरंत वो सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता है। सबसे पहले वी हैव टू गैदर अ रॉ मटेरियल्स,
फिर वो रॉ मटेरियल्स पे थोड़ा वर्क करेगा एंड देन ही विल बी वर्किंग ऑन एन एक्चुअल सॉफ्टवेयर. समझ में आया? तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग व्हाइल मेकिंग अ सॉफ्टवेयर. तो अभी सॉफ्टवेयर का तो बात हमें बाद में करेंगे, पहले हम लोग एल्गोरिदम का बात करते हैं. एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट्स एन सिक्वेंशियल स्टेप. सिक्वेंशियल मीन्स वन बाय वन. ये दिख रहा है आपको, स्टेप वन, स्टेप टू, दीज आर वन बाय वन, राइट? तो सिक्वेंशियल स्टेप टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. आई होप नाउ वी आर क्लियर विद दिस. मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको दिए थे. टू प्रिपेयर अ टी, to prepare a chapati, these all are basic examples. उसमें क्या होगा, you are not able to do, you if you miss any one step you are not able to work further, right? समझ में आ रहा है? So this is algorithm. Now moving to the part, that is flowchart. Flowcharts क्या है? It is a graphical or pictorial representation Flowchart is an graphical or pictorial representation of an algorithm. Now जो algorithm आपने step wise लिखा, step 1, step 2, step 3, okay, वही algorithm आप लोगों को pictorial form में मिलेगा, and that is known as flowchart. Okay, that is known as flowchart. Is it clear everybody? Flowchart क्या है? Uh, it is a graphical or pictorial representation of an algorithm. समझ में आया? Now I will share one picture. Okay. In last session I have shown you one of the uh, some symbols, right? Symbols दिखाए थे मैंने आपको. So see this first one, start and end. Haripriya, kindly. Okay. So first symbol is start and end. The symbol denoting the beginning and the end of the flowchart. Okay. Start and end symbol is used like this. Wait a second. Okay. Start and end is used like this. Okay. ऐसे use होगा वो. समझ में आ रहा है? Last time भी मैंने आपको बताया था. The symbol denoting beginning and the end of the flow chart. Okay. It is just like a oval shape. Okay. It is just like a oval shape. Next comes this one. इसको स्टेप भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है. दिस सिंबल शोज दैट द यूजर परफॉर्म्स अ टास्क. मतलब प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर processing is used for rectangle is used for processing. फिर ये है डिसीजन मेकिंग, दैट इज डायमंड शेप. डायमंड शेप मतलब डिसीजन मेकिंग. जो भी आप डिसीजन डालोगे जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन, दैट थिंग्स विल बी रिटन इन डायमंड शेप. ओके. इसको हम बोलेंगे इनपुट और आउटपुट. वी कैन टेल इट एज एक्शन ऑल्सो. दिस सिंबल मीन्स दैट द यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन. ठीक है. एक्शन मतलब गिविंग इनपुट एंड यू आर गेटिंग आउटपुट. समझ में आया? एंड द लास्ट वन इज फ्लो लाइन्स. ठीक है. लास्ट वन इज flow line. It will show that the
a line that connects the various symbols in an ordered way. ओके, समझ में आया?